Yes. So this small video is based on the revision of section 128 and 129. सबसे पहले जब हम 128, 129 रिवाइज करने शुरू करते हैं तो हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज को देखा था यहाँ पर। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स शब्द के अंदर क्या क्या है, उसके बाद फाइनेंशियल ईयर नॉर्मली यूनिफॉर्म होता है, बट यू कैन हैव अ डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर इन सम स्पेशल केसेस इफ यू आर अ होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी या एसोसिएट अगर आप हैं एक ऐसी कंपनी के जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, देन फॉर कंसोलिडेशन पर्पसेस यू मे change your financial year according to that company incorporated outside India. For this, you have to apply to central government. Okay. Now, if a company wants to change the financial year, there is a procedure where you have to apply to regional director in e-form RD1, and these are the points which you have to keep in mind, that what are the reasons for the change that has to be given along with this application, and some other documents are also submitted. And once you get the regional director's permission, you have to file this in INC 28 with ROC within 30 days. Is it fine? Okay. Now comes the most important point. Now there's a 3-mark direct question. Can books of accounts be kept at any other place in India? Because usually we hear that books of accounts are kept at the registered office. आप बुक्स को दूसरी जगह रख सकते हैं, उसके लिए एक बोर्ड रेजोल्यूशन एट बोर्ड मीटिंग पास करना पड़ेगा, और विद इन 7 days of passing the board resolution, you have to inform ROC in AOC 5 the address of such other place. Okay, remember it's board resolution. जब हम लोग पढ़ते थे बचपन में रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के हम दूसरी जगह रख सकते हैं, उस समय SR पास होता था, एंड वो दूसरी जगह एक ऐसी जगह होती थी जहां मोर देन 1/10 of the number of members reside. But compare it with the books of accounts, it's not special resolution, it's the board resolution. एंड ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो दूसरी जगह ऐसी हो जहां मोर देन 1/10 of the number of members reside करते हो. So another important question, can you maintain books of accounts in electronic form? So the Companies Act provides books may be maintained in electronic form, but there are rules prescribed with regard to this, that a lot of conditions have to be complied. When you are keeping the books in electronic form, it shall be kept in the same format in which they were originally generated. Can you see this point? The books will be, the electronic records will be accessible in India. It will be in legible format. Okay. And there must be a proper system for storage of such electronic records, which the audit committee or the board may determine. Now, the most important point, if the backup of the books of accounts which are kept outside India, if the books of accounts are kept outside India, the backup of the books of accounts must be kept in the servers located in India. The backup must be kept in the servers located in India. Okay. And every year, annually, we have to inform to ROC at the time of filing financial statements the IP address of the service provider where you have outsourced some other agency to maintain the books in electronic form, the IP address, the name of the service provider, and the location of the service provider. Okay. तो ये points पहले भी थे, but 1st April 2021 से 1st April 2021 से एक नया कॉन्सेप्ट आया था जो पहली बार नवंबर 2021 दिसंबर 2021 वाले बच्चों के लिए एप्लीकेबल था, एंड ऑफ कोर्स 22 to 23 के लिए भी है, कि एवरी कंपनी व्हिच यूजेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जो भी कंपनी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रही है, उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एक ऐसा फीचर होना चाहिए कि अगर आपने अपने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को एडिट किया है, कुछ चेंज किया है, तो उसका एक पूरा कब एडिट किया था, टाइम और कितनी बार किसने ऑडिट किया है, एक एडिट लॉग जनरेट हो जाए, और आप हर स्टेज पर ट्रैक कर सकें कि इस रिकॉर्ड्स को क्या क्या आपने किया है, क्या हुआ है. इसको हम लोग ऑडिट ट्रेल बोलते हैं. तो ऑडिट सॉफ्टवेयर विल ऑफर द फीचर ऑफ ऑडिट ट्रेल विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2021. ऑडिट ट्रेल का फीचर होना चाहिए. ओके. एंड एन एडिट लॉग ऑफ सच चेंजेस must be maintained, and audit trail कभी भी डिसेबल ना हो. तो ये आपको आंसर में लिखना पड़ेगा when you are asked the question about keeping of books in electronic mode. This new amendment is very very vital. सर ये कहाँ मिल सकता है? मैं अपने नोट्स में भी डाल दिया हूँ कुछ किताबें जो अभी आपको मिली होंगी, एंड वी हैव आल्सो पुट इट ऑन आवर वेबसाइट, कैन द बुक्स बी केप्ट इन इलेक्ट्रॉनिक मोड में. ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको यहाँ पर दिख रहा है, वरना आप मुझसे व्हाट्सएप करके मंगवा भी लीजिएगा. ओके. अपार्ट फ्रॉम दिस, नाउ सिंपल क्वेश्चंस.
कि अगर आप ब्रांच ऑफिस के रिकॉर्ड्स ब्रांच ऑफिस में रख रहे हैं तो समराइज रिटर्न्स पीरियोडिकली इंडिया में आपको भेजते रहना चाहिए, हर 3-3 महीने पे पीरियोडिकली एट इट क्वार्टरली इंटरवल्स द रिकॉर्ड्स मस्ट बी सेंट टू इंडिया. ओके. Directors can inspect the books of accounts, but their friends, their authorized representatives cannot inspect books of accounts. अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है, कैन मेंबर्स इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स? तो आपको याद होगा कि मेंबर्स कैन नॉट इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बट ये कुछ स्पेशल केसेस हैं. आप यहां पर देखेंगे, स्पेशल केसेस आप यहां पर देखेंगे जहां पर लिखा हुआ है कि मेंबर्स को अगर आर्टिकल्स अलाउ कर दे आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि दे कैन ऑथराइज मेंबर्स टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, या शेयर होल्डर्स मीटिंग में एक पर्टिकुलर मेंबर को ऑथराइज कर दिया गया है ओआर इन जीएम से, तो मेंबर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट कर सकता है. अदरवाइज यूजुअली मेंबर्स डू नॉट हैव द राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स. सर एक शेयर होल्डर है, उसके पास 51% होल्डिंग है, फिर भी उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं देखने दिया जा रहा, वो क्या कर सकता है? यही प्रोविजन ऊपर वाला बोलोगे. या एक रास्ता और है, वो अपने आप को अगर डायरेक्टर अपॉइंट कर ले एजीएम कन्वीन करा के, और डायरेक्टर्स के पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट करने के राइट्स होते हैं, देन ऑफ कोर्स ही विल आल्सो हैव द राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स. कितने सालों का बुक्स ऑफ अकाउंट्स मुझे मेंटेन करना है? लास्ट 8 years का तो मिनिमम है, और कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट अगर लॉन्गर पीरियड के लिए बोल देता है देन इट बिकम्स 8+X. एक बात हम लोग बोलते थे इसी 128 के अंदर, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मस्ट बी केप्ट. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स? तो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, जिसमें ट्रू एंड फेयर व्यू मिले, जो डबल एंट्री के अनुसार और अक्रूअल बेसिस के अनुसार मेंटेन हो, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. नाउ हु इज रिस्पॉन्सिबल? डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं, केस स्टडी में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा आप देख रहे हैं यहां पर मैनेजिंग डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सीएफओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सीएफओ होल टाइम डायरेक्टर, एवरी होल टाइम डायरेक्टर नहीं, होल टाइम डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ फिनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहां पर है. और अगर आपके बोर्ड ने किसी पर्सन को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली एलोकेट कर रखा था फॉर मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो फिर वो मेंटेन करेगा. And ये any other person may be the chief accountant of the company. Okay. So सर अगर ये books of accounts maintain नहीं होते हैं तो फाइन मिनिमम 50,000, मैक्सिमम 5 lakhs. See imprisonment up to 1 year, ये कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 आने के बाद ये रिमूव कर दिया गया था imprisonment का फिगर. तो सेक्शन 128 में if I can recall and summarize there are 4 minimum expected questions. पहला हमने देखा यहां पर क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स दूसरी जगह रखा जा सकता है. दूसरा, फाइनेंशियल ईयर चेंज करने का प्रोसीड्यूर और किन हालातों में हम फाइनेंशियल ईयर चेंज कर सकते हैं. तीसरा, क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हैं विद स्पेशल रेफरेंस टू द अमेंडमेंट्स. चौथा, आपके डायरेक्टर्स और मेंबर्स में कौन इंस्पेक्ट कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स. पांचवा, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ये पांचों चारों लिस्ट आपको याद हो गए. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसका फाइन कितना है? मिनिमम 50,000, मैक्सिमम 5 लाख. इंप्रिजनमेंट अब रिमूव हो गया. सर सीए इंस्टीट्यूट और सीएमए इंस्टीट्यूट की बुक में तो अभी भी इंप्रिजनमेंट है, तो वो रेक्टिफाई कर लीजिएगा. अंडरस्टूड एवरीवन? ओके. नाउ सेक्शन 129, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फॉर्मेट की बात हो रही है. ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाए, शेड्यूल 3 के अनुसार बने, एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी फॉलो हो. बट कुछ बिग कंपनीज को ये नहीं फॉलो करने की दरकार होती है, वो अपने स्पेशल स्टैट्यूट के रिक्वायरमेंट के अनुसार बनाते हैं. Now, what are those big companies? Banking, electricity, generation of insurance companies, generation of electricity. These are 3-4 big companies. जहां पर they need not follow the Companies Act requirement. They will follow the requirements of their special statute. Next, at every AGM, it is laid down. At AGM, what is laid down? Own financial statements, consolidated financial statements, and AOC1. So, what is AOC1? A separate statement containing the salient features of its subsidiary and associates. तो अगर कंपनी के सब्सिडियरी या एसोसिएट्स हैं तो उनको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू एएस या इंड एएस जैसा लिखा हुआ है वो बनाना पड़ेगा. और AOC1 is a separate salient features of the subsidiary and associates. Will you remember this? Yes, wonderful. उसके बाद हमने देखा था, हमने बोला कि कंसोलिडेट करना पड़ता है अगर आपकी सब्सिडरीज हैं. पर ये वाला स्ट्रक्चर देखो, इस एग्जाम्पल को पढ़ो कि कभी कभी जो बीच में होल्ड बी जो है, ए जो है वो बी में होल्ड कर रहा है. ओके, 100% भी हो सकता है, नॉर्मल सब्सिडरी भी हो सकती है, और बी सी में होल्ड करता है.
यानी B is the holding company of C. B was supposed to required consolidate, was supposed to consolidate C, but क्योंकि A already B and C को consolidate कर रहा है, तो क्या हम exemption दे सकते हैं B को कि आप अगर C को consolidate नहीं करें तो भी चलेगा? तो MCA सर्कुलर आया हुआ है, yes B को ये exemption मिल सकता है अगर B लिमिटेड तीन चीजों को satisfy करे. B लिमिटेड एक unlisted कंपनी है, ओके लिस्टेड होगा तो कंसोलिडेशन करना होगा. और व्हेन आई से अनलिस्टेड कंपनी है बी, इट इज नॉट लिस्टेड इन इंडिया, नॉट लिस्टेड अब्रॉड, दोनों चीजें याद रखना. एंड इट कैन बी एनी टाइप ऑफ सब्सिडरी. एंड अपने मेंबर्स को बी लिमिटेड ने इन्फॉर्म कर दिया राइटिंग में कि वी आर नॉट गोइंग टू कंसोलिडेट बिकॉज द मेन पेरेंट होल्डिंग कंपनी इज ऑलरेडी कंसोलिडेटिंग सी, एंड नन ऑफ द मेंबर्स हैव ऑब्जेक्टेड टू दिस रेजोल्यूशन, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ नॉट कंसोलिडेटिंग. तो ये एग्जेम्पशन मिल सकता है. इज इट ओके? पक्का. नेक्स्ट, उसके बाद आप देखोगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अगर कोई कंपनी पालन नहीं करती है, कंपनी का फर्ज है द नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करना, क्यों नहीं हुआ है, क्या इफेक्ट आया है एंड रीजंस क्या है, तीन चीज बताएगा. कंपनी का एक और एक फर्ज है, जब बोर्ड्स रिपोर्ट कंपनी बनाता है उसमें भी ये फैक्ट को लिखना पड़ता है, द रीजंस फॉर नॉट कंप्लाइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, डिस्क्लोजर्स इन बोर्ड्स रिपोर्ट मिला. एंड जो ऑडिट रिपोर्ट सर्कुलेट होता है उसमें ऑडिटर भी बता देते हैं लोगों को दैट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इस कंपनी ने पालन नहीं किया है. यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं पालन करने से, देखो 129 पिक्चर में आ रहा है, 134 बोर्ड्स रिपोर्ट का सेक्शन है एंड ऑडिट रिपोर्ट का सेक्शन 143 है. तो थ्री थिंग्स आर कमिंग इनटू पिक्चर इफ यू डोंट फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कुछ कंपनीज को खुद या एप्लीकेशन जब वो कंपनीज करती हैं तो सेक्शन 129 में था ना, एएस पालन करो, ये डिस्क्लोज करो, ये करो, वो करो. एग्जेम्पशन कुछ कुछ कंपनीज को दे सकती है पब्लिक इंटरेस्ट में. ऐसे एग्जेम्पशन यूजुअली डिफेंस कंपनीज को मिले हुए रहते हैं बिकॉज हर चीज उनका सीक्रेट चीज हम डिस्क्लोज नहीं करवाना चाहेंगे, वो नहीं करवाना चाहेंगे. नाउ हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर non-compliance of section 129? List is very similar to what we have done in 128. That is MD, WD, CFO, any other person charged by the board. और यहां पर imprisonment remove नहीं हुआ है क्योंकि वहां पे मैंने बोला था कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद रिमूव हो गया है, but here the imprisonment is still continuing. Is it okay? So this completes two sections 128 and 129. अगले क्लिपिंग में मैं आपको सेक्शन 130 और 131 का डिफरेंस समझाते हुए एक शॉर्ट क्लिपिंग बनाकर भेजूंगा.